بتائے گا کہ ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے نون لیگ کو، کیا کہیں گے؟ جی، یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان بہت سارے مقدمات کی واپسی کا ایک تسلسل ہے جو کہ پچھلے کافی عرصے سے ایک منظم مہم کے تحت سارے کے سارے قائم کیے جا رہے تھے۔ اگر ہم صرف اس منی لانڈرنگ کے کیس کو نہ بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام کیسز کو دیکھیں، وہ کیسز جو کہ ایون فیلڈ کا کیس تھا، جو کہ العزیزیہ کا کیس تھا، اور اس سے پہلے بھی جتنے کیسز سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی نے احتساب کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ احتساب کا سامنا کیا ہے۔ اور آج بھی ان کو، آج جب ان کی حکومت قائم ہے، آج بھی ان کو مقدمات کا سامنا ہے، آج بھی ان کو حاضری کے لیے کہا جاتا ہے، پیشیوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم نے نیب کے حوالے سے، ہم نے احتساب کے حوالے سے ایک بہت ہی سیاہ دور گزارا ہے، جس کو ہم خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دور کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک دور تھا، جس طرح وہاں اس دور میں مقدمات قائم کیے گئے یا پہلے سے قائم مقدمات کو آگے بڑھایا گیا، اور جس طرح اس دور کے اندر گھروں تک کو نہیں چھوڑا گیا، نہیں بیٹیوں کو نہیں چھوڑا گیا، بہنوں کو، وہ عورتیں غیر سیاسی جو بیویاں تھیں ان کو عدالتوں میں پہنچایا گیا، وہ ایک سیاہ دور تھا۔ اب اگر ریلیف مل رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو متنازع اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ آج دیکھیے، آج ہی میرے پاس ایک خبر آئی کہ ہمارے ایک عدالت نے 22 سال سے اندر بندہ ہے، اس کی ضمانت کا کیس جو ہے خارج کیا، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے FIA کی طرف سے جو منی لانڈرنگ کا کیس ہوا ہے، اور اس سمیت باقی تمام مقدمات میں گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت ملی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت جو وہ ریلیف لے رہی ہے اور جس حد تک وہ ریلیف اعلیٰ عدالتوں سے لے رہی ہے وہ تو زبان زد عام ہے۔ اور شہباز شریف کے حوالے سے یا حمزہ شہباز کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، میں نے ان کی گورننس کو قریب سے دیکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دور میں کوئی اس قسم کی کرپشن ہوئی یا منی لانڈرنگ کی گئی یا اس کمیشن کی بات کی گئی۔ حمزہ شہباز جو تھے اپنے والد کے دور میں پنجاب میں ڈپٹی چیف منسٹر کے طور پر جو تھے سمجھے جاتے تھے، قائم مقام وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، لیکن میں نے آج تک کسی بندے سے یہ نہیں سنا کہ اس نے حمزہ شہباز کو کسی قسم کی کوئی کمیشن دی ہو، اس نے کسی قسم کا کوئی مال دیا ہو۔ یہ باتیں ہم فرح گوگی کے حوالے سے سنتے رہے، یہ باتیں ہم عثمان بزدار کے حوالے سے سنتے رہے، یہ ہم ایوان وزیر اعلیٰ میں جو پوسٹنگ کی منڈی لگی ہوئی تھی اور جو وہاں پر پیسے جمع کیے جاتے تھے، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں پر IG پریزن لگنے کے حوالے سے ابھی ایسی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، میں ان کا انکشاف کر دوں تو شاید میں اس کے ثبوت کے انتظار میں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا اس ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے کیا گیا، شریف فیملی کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے کیا گیا، اور اب چونکہ منظرنامہ بدل رہا ہے اور یہ بہت سارے دوستوں کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے، جو کچھ یہاں پر کیا جاتا رہا، اس کا رزلٹ کچھ جی ناظم ولی، جیسے کہ یاز شجاع نے ابھی کہا کہ تحریک انصاف اس پر بھی اپنے ووٹرز کے سامنے یہ بیانیہ پیش کرے گی کہ فیصلہ جو ہے میرٹ پر نہیں کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو کیا ایسی حکمت عملی جو ہے اپنانی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹرز کو یقین دلا سکے کہ یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پر کیا گیا ہے اور اس طرح سے پالیٹکس کر سکے؟ مسلم لیگ نون جو ہے کیا سیاست کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، اور کس طرح وہ اپنا بیانیہ تشکیل دیتی ہے، میری تو اس پر ریزرویشنز موجود ہیں کہ یہ کس طرح اپنا بیانیہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ میرٹ پر کیس ختم نہیں ہو رہے، تو یہ کیا کیس جتنے ہیں کیا میرٹ پر بنے ہوئے ہیں؟ کیا اگر یہ کیس میرٹ پر بنے ہوئے ہیں تو پھر میرٹ پر ختم بھی ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ کیس ایک پوری کی پوری کمپین کے نتیجے میں، ایک مہم کے نتیجے میں بنے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جس طرح کیس بنے ہیں اسی طرح ان کو ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ کیسز اشارے پر بنے ہیں پھر ان کو اشاروں پر ختم ہونا بھی ان کا درست ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ایک طویل عرصہ ہم نے گزارا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستان میں شریف فیملی نے ایک احتساب کے حوالے سے ایک طویل دور گزارا، ایک طویل دور پاکستان کی تاریخ میں شاید بھٹو فیملی ان کے مقابلے پہ یہ کلیم کر سکے کہ ہمارا اتنا احتساب ہوا ہے جتنا احتساب جو ہے شریف فیملی کا کیا گیا ہے۔
ये एहतसाब उस वक्त भी हुआ था जब भुट्टो साहब के दौर में, और इंतकाम कहूंगा मैं इसको, जब उनके तमाम के तमाम कारखाने जो थे कौमिया लिए गए थे, अभी वो सियासत में भी नहीं आए थे। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में एहतसाब हुआ, इनका उस वक्त हुआ जब इनका जहाज जोनाथन जो था उसको बर्फ देने से इनकार कर दिया गया और इनको करोड़ों रुपए का नुकसान जो था उस वक्त भी पहुंचाया गया। उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ का दौर है, एक लंबा एहतसाब का हमारे सामने पीरियड नजर आता है, एक दौर नजर आता है कि उस वक्त एहतसाब किया गया, इनके घरों तक पर, इनके आबाई घरों तक पर कब्जा कर लिया गया, वहां पर सरकारी मराकज बना दिए गए अफराद के। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का दौर, मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब का दौर है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से भी बदतर है। ये तो एहतसाब और इंतकाम, एहतसाब तो रह नहीं कही गया, एहतसाब वाली नाम तो बात चीज थी नहीं, ये तो सारे का सारा इंतकाम पर मबनी था। तो लिहाजा अगर ये रिलीफ मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को भी मिल रहा है। इमरान खान साहब को जो इस वक्त रिलीफ मिल रहा है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। आप वो गिरफ्तार तक नहीं हो पा रहे, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वो गिरफ्तार तक नहीं हो पा रहे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीजों को हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त तो वो खुद सफाइयां देने पर लगे हुए हैं कि वो कैसे इस तमाम चीजों से बच रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। तो नजम वली साहब, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को आज के इस फैसले से नुकसान होगा, चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले कि इस बयानियों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करे? देखें जी, तहरीक इंसाफ को जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका। तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार से निकल चुकी। तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त अब तमाम चीजें जो हैं उनके खिलाफ, तोशाखाना केस की आप बात कर लें, आप मुल्क रियाज के अरबों रुपए वापस करने की बात कर लें, आप इस समेत फॉरेन फंडिंग की बात कर लें, वो तमाम चीजें जो हैं वो सारी की सारी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह की धुली धुलाई जमात नहीं रही जिस तरह आज से पहले 2011 में जब इन्होंने जलसा किया था, 2014 में जब इन्होंने धरने दिए थे, या 2018 में जब ये इक़्तिदार में आए थे तो जिस तरह बात करते थे साफ शफाफ होने की, वो जमात उस तरह की नहीं रही। आज इसके ऊपर बहुत सारे दाग हैं, ये बाकी सियासतदानों के मुकाबले में बल्कि उससे कहीं ज्यादा करप्शन में इंडल्ज हैं, ये उसी तरह के इल्जामात है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को फायदा नहीं उठा सकेगी, क्योंकि वो तो अभी तो उन्होंने अपने इल्जामात का जवाब देना है। अभी इमरान खान साहब जो है फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIA उस पर तहकीकात करेगा, उनको तलब करेगा। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप उनको गिरफ्तार ना करें। हम एहतराम करते हैं अदालती फैसलों का, और अदालत ने जो फैसला किया बिल्कुल दुरुस्त फैसला होगा, लेकिन क्या ये इस तरह की जमानत कबल गिरफ्तारी जो है इससे पहले भी मिलती रही है? क्या इससे पहले ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक और इस तरह बहुत सारे और रहनुमा जो जाते थे अदालतों में, क्या उनको भी ये रिलीफ मिलता था? नहीं मिलता था, वो गिरफ्तार होते थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है कभी अदलिया पर उंगली नहीं उठा सकेंगे। नजम वली, जैसे कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ भी अभी धुली हुई पार्टी नहीं रही, जैसे कि रिसेंटली ऑडियो लीक्स हुई हैं, उसके बाद भी उनके वोटर्स की तादाद कम नहीं हुई, लाइक लोगों की तादाद कम नहीं हुई, जलसों में वे उसी तसलसल से आ रहे हैं जैसे पहले वो जलसे कर रहे थे। देखिए जी, जलसे किसी भी जगह पर आप अवामी मकबूलियत को पैमाना नहीं बना सकते, ये तो इंतखाबात जो है वो तब फैसला करेंगे। और अगर आप जलसों की बात करते हैं तो मैं आपको अभी कल के ननकाना के जलसे के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ननकाना में जब जलसा किया गया तो वहाँ पर स्कूलों में बाकायदा छुट्टी कर दी गई, वहाँ पर पटवारियों की और टीचरों की बाकायदा हाजिरियाँ लगाई गई और उन लोगों को मजबूर किया गया और टीचर्स को कहा गया कि आप वो पहुंचे, आप वहाँ पर जाकर, उन्होंने बाकायदा सरकारी अमले के जरिए जलसा कामयाब बनाया। तो ये सूरत हाल उस तरह की नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब इमरान खान साहब जो है मकबूलियत के उसी जगह पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, और ये आने वाले दिन में फैसला होगा। अभी मसला क्या है, नून लीग के साथ मसला महंगाई का है, क्योंकि इस वक्त चीजें महंगी हुई हैं, उसकी वजह से लोगों में रिएक्शन है। जैसे जैसे इकॉनमी बेहतर होगी तो लोग जो है अपना फैसला करेंगे, बेहतर तौर पर फैसला करेंगे। और दूसरी बात है कि इमरान खान साहब जो है वो बयानियां बनाने में माहिर हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो अब जब अगले इंतखाबात होंगे और जब मुकाबला होगा तो फिर मुकाबला उस वक्त होगा जब इमरान खान साहब एक तरफ जलसे कर रहे होंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे। जब दोनों पहलवान अखाड़े में उतरेंगे तब पता चलेगा कि असल मुकाबला है किसके साथ और कौन कितना भारी पहलवान है। अभी तो अकेले इमरान खान साहब हैं, अभी उनके मुकाबले पे कौन है? शहबाज शरीफ जो है अवामी सियासत करते ही नहीं है। ये बताएगा कि मैटर ऑफ फैक्ट ये चीजें क्या सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी हैं कि एक पार्टी जीते तो दूसरी पार्टी यही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि इस फैसले में शफाफियत नहीं है?
मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हमारा मुकदमात बनाने का सारा सिस्टम अगर इंसाफ पर मबनी होता और वाकई हम करप्शन की रोकथाम करने के लिए मुकदमात बना रहे होते और ये इंतकाम ना होता तो कोई भी ये बात ना करता। आज हमारी अदलिया अगर 130वें नंबर पर मौजूद है तो उसकी वजह यही है कि हमें उन तमाम मुकदमात के बनने पर, उनकी कार्रवाई पर हमें शदीद एतराज़ है। जैसे कि मैं जज मोहम्मद बशीर के मुकदमों की बात करूँगा, जैसे मैं जज अरशद मलिक के मुकदमात की बात करूँगा, उसके बाद उनकी जो वीडियोस आई और जिस तरह वो फैसले हुए मैं उनकी बात करूँगा। मैं बात करूँगा जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने जिस तरह एक वजीर आजम को यहाँ पर सिर्फ इसलिए ना अहल कर दिया तो उसने अपने बेटे से ना ली हुई तनख्वाह अपने गोशवारों में जाहिर भी की थी और उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जो है सहारा लिया गया और एक पूरी की पूरी रजीम चेंज की जो साजिश थी वो उनके जरिए की गई। तो जब आपके अदालती फैसले और आपके जो तमाम की तमाम इस वक्त एहतसाब के नाम पे इंतकाम है, अगर आप उसको रवा रखेंगे तो फिर हर कोई उस पर उंगली तो उठाएगा। इस वक्त अगर आप इस फैसले पर उंगली उठाएंगे तो दूसरी तरह से इमरान खान साहब को जो एक के बाद दूसरे मुकदमे में जमानत मिलती चली जा रही है वो और उनके खिलाफ बगावत के मुकदमात तक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बात कर दी गई है, तो क्या आप उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? लिहाजा शकूक व शुबात तो हैं और हर किसी को हक भी है कि वो अपने सियासी मैदान में खेले। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें खेलना चाहती है तो खेले, लेकिन दूसरों के पास भी खेलने के लिए एक बड़ा मैदान मौजूद है। मैं इस बात की जो है निशानदेही कर रहा था। जी अच्छा नजम वली साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नून लीग को अदालतों से जो है रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और एक जानिब पीटीआई की जो मकबूलियत है वो भी आसमान पर है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में नून लीग पीटीआई को टफ टाइम दे सकेगी? देखिए, जहाँ तक आपने एक फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आसमानों पर है, तो इसकी बुनियाद वो 20 हल्कों का इलेक्शन था जहाँ पर पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी। और अगर आप ये कहें कि उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा 15 हल्के ले जाने में कामयाब हो गई है और आप ये समझते हैं कि ये उसकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, तो मेरा ख्याल है ये कोई तजिया कोई इतना ज़्यादा गैर जानिबदाराना या इतना ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। उसकी बुनियाद ये है कि अगर आप मुखालफों की 20 सीटों में से 5 सीटें आप दूसरे ले जाते हैं तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं? तो बहरहाल इस वक्त चूँकि सारे का सारा बयानिया महंगाई पर बनाया जा रहा है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वॉक ओवर मिल रहा है। जैसे आगे चल के आम इंतखाबात करीब आएंगे तो तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जी अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से नून लीग के साथ इस तरह से चीज़ें मामलात की जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में या कुछ अरसे में या ये चंद ही दिनों में महंगाई को कंट्रोल करने में जो नून लीग है वो कामयाब हो सकेगी? देखिए, इस वक्त तक जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जिस दिन से इसहाक डार साहब वतन वापस लौटे हैं उन्होंने डॉलर की कीमत जो है कोई 20 रुपये नीचे गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे अभी पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये की कमी हुई है, तो मुल्क जैसे जैसे इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों की कीमतें वापस आएंगी और ये एक बेहतर मुकदमे के साथ और पाकिस्तान को बचाने के नारे के साथ, रियासत को बचाने के नारे के साथ जब आएंगे तो बेहतर खेल सकेंगे। देखिए, जब जहाँ तक बात की जाती है ना जी कि शरीफ फैमिली जो है, इमरान खान साहब बहुत मकबूल हो गए और शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये बताऊं कि ये बातें मैं 1993 से सुनता चला आ रहा हूँ। 1993 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुखालिफ हुई तो ये कहा गया था कि अब शरीफ फैमिली दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकेगी, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ 1997 में दोबारा वज़ीर आज़म बने। जब मुशर्रफ का मार्शल लगा तो ये कहा गया कि शरीफ फैमिली की सियासत तो खत्म होकर रह गई है, अब तो आगे इनका कुछ बन ही नहीं सकता, अब तो इनको जलावतन कर दिया गया है, अब तो ये बिल्कुल खत्म होकर रह गए हैं। नवाज शरीफ उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बने। आज मैं समझता हूँ उतनी बुरी सूरत हाल नहीं है शरीफ फैमिली के लिए जिस तरह की परवेज मुशर्रफ के दौर में थी, जब वो अटक किले में बंद थे, जब उनके घरों के ऊपर जो थी फोर्स लगी हुई थी, उनके घरों में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। हमने उस वक्त भी ऐसी कवरेज की हुई है। हम बाहर ग्राउंड में माराथन पार्क में बैठते थे, बेगम कुलसूम नवाज अपने घर की छत पर खड़ी होती थी और वहां से वो मेगाफोन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, क्योंकि हमें उनके घर के करीब जाने की इजाजत नहीं थी और हम उनकी बातें सुनकर वहां से भाग पड़ते थे, क्योंकि पुलिस उसके बाद मूव करना शुरू कर देती थी कि कहाँ तक सुनाया जा रहा है।